ایک ہی صف میں بیٹھ گئے سارے سیاسی یتیم. ارے بھائی بیٹھ نہیں گئے، کھڑے ہو گئے تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں بیٹھ گئے سارے سیاسی یتیم. محسن نقوی، گنڈا پور اور فیصل کریم. وقت کیا نکال کے لائے ہو مرزا صاحب؟ وقت کہاں سے نکال کے لائے ہو بھائی؟ آپ دیکھ لیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. ارے میاں یہ تو آج آپ نے یاد دلا دی کہ کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے، کس نے دیے ہیں یہ جھمکے، کیوں دیے ہیں یہ جھمکے. اب شعر آپ پورا سنیں گے؟ اب قطع ہے، بلکہ یہ تو مجھے لگ رہا مکمل ہے کہ نہیں شعر تو ہو گیا. ایک ہی صف میں بیٹھ گئے سارے سیاسی یتیم. واہ 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 واہ. محسن نقوی، ہاں گنڈا پور ہاں، اور فیصل کریم. کیا بات ہے مرزا صاحب. واہ 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 واہ. آگے آگے. قوم سے اپیل ہے کہ سارے مل کے پڑھو. قوم سے اپیل ہے، چندے کی تو نہیں ہے، یہ کوئی نئی اپیل ہے. یہ یار آپ کو اپنی چیزیں یاد آتی ہیں. وہ کیا کروں میں یار، کیا کروں. قوم سے اپیل ہے کہ سارے مل کے پڑھو. قوم سے اپیل ہے کہ سارے مل کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واہ 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 واہ. ارے واہ میاں، واہ واہ مرزا صاحب. واہ 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 واہ. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من یہ الشیطان جو الرجیم. اتنا آپ زور سے چلا رہے ہو نا، واہ 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 واہ، لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہوگا. واہ مرزا صاحب، واہ مرزا صاحب. کیا بات ہے یار، جی چاہ رہا ہے کہ آپ بس سارا یہی کرتے رہیں. واہ واہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے نقاب نیوز چینل اور اے بیز ڈائلاگ پروگرام اور لے کے حاضر ہوئے ہیں اے عدیل مرزا، ہمیشہ کی طرح بی بالم. جناب مرزا صاحب کمال کر دیا آپ نے. واہ 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 واہ. بالم کیا صاحب، بات ہے یار، آج کیا گرینڈ جرگے کی نقشہ آپ نے کھینچا ہے. واہ یہ واہ. جو یہی میں بتانے لگا تھا ہاں کہ یہ جو میں نے کچھ چند لائنیں لکھی ہیں نا، واہ واہ واہ. یہ گرینڈ جرگا ہوا ہے پشاور میں، واہ واہ واہ. جو چند روز پہلے ہاں. بلکہ چند گھنٹے پہلے وہاں دستوں گریبان تھے نا، ہاں وہ سارے ایک ہی سٹیج پہ، بلکہ ایک ہی نشست میں. وہ جب بیٹھا ہوا میں نے ان کو دیکھا نا، ہاں. تو مجھے نا جو میرے ذہن میں فوراً جو چیز آئی، وہ کہتے ہیں نا منافقت نہیں کرنی چاہیے، جو آپ کی چیز ذہن میں آئے وہ کہہ دو. واہ 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 واہ. تو میں نے کہہ دی. بھائی اصل میں اس کو میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ویکھیے پھر ڈنڈے دی کرامت. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ. ਆਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਜਿੰਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਆਏ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੰਡਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੀ ਠਾ. یار آپ نے بھی کہا کہ میں منافقت نہ کروں، میں نے بھی کہا یار کیا رکھا منافقت میں، ਸਿੱਧੇ ਹੀ پہنچنا. ਟਕਾ ਦਿਓ. ٹکا دیو جی. ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਬੇਹੋਸ਼, ہاں ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਏ. ہاں. کل تک 200 گریباں تھے باہم، اور جب پڑا ڈنڈا تو کیسے ہو گئے اکٹھے. لگ گیا نا پھر ڈنڈے کے اندر جھنڈا. وہ ایک نا وسیع شاہ کی نا غزل ہے، اس کا مجھے صحیح اگر تلفظ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائیں تو میں معافی چاہوں گا وسیع شاہ صاحب سے بھی، کیونکہ وہ تو زندہ سلامت ہیں. ہاں جی بالکل. غالب کا اگر کہہ دیں، میر دارد کا تو چلو وہ روح ہی تڑپے گی نا، کم از کم ڈنڈے سے بچ جائیں گے. وسیع شاہ تو ڈنڈا لے کر آ جائیں گے. وہ ادھر پریس کلب میں ملاقات ہو جائے وہ گی. انہوں نے کہنا بھائی میرے شعر کا تم نے حلیہ بگاڑ دیا. لیکن چونکہ یہاں پہ وہ مناسبت سے وہ مجھے یاد آ رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی جی کہ ہمارے درمیان جب غم نہ رہے، تم نہ رہے، ہم نہ رہے، ہم کون آئے ہو گل سی. ہاں جی جی. تو میرا کل ہی کوئی دوست یہاں پہ لطیفہ سنا رہے تھے کہ پنجابی فلم وہی چلتی ہے جس میں اوئے ہو بڑکے ہوں، اور پشتو فلم وہی چلتی ہے جس میں ہیرو کا منہ دکھایا جاتا ہے، رہن کا منہ نہیں دکھایا جاتا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اچھا بات پردے کی تھی، پردے میں رہنے. دوسری جو بات میں کرنے لگا تھا نا آپ سے، ہاں جی وہ یہ کہ جب آپ بات کر رہے تھے نا حیدرآباد میں پنجابی، چلیں وہ زبان کا کلچر بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کی پنجابی زبان نہیں ہے وہاں پہ، اوئے کو ناپسند کیا جاتا ہے. اوئے کو بھی ناپسند کیا اب تو جاتا ہے. سر اب تو اوئے سے ادھر جو ہمارا کلچر ایک پچھلے 30 35 40 سال میں تبدیل ہو گیا ہے کراچی حیدرآباد میں. اب ادھر اوئے یعنی اب اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. آپ کے یہاں پڑھا لکھا پنجاب میں نے دیکھا کہ اب یہاں لوگ اوئے نہیں کہتے، تہذیب سے تمیز سے شستہ شائستہ گفتگو کرتے ہیں.
लेकिन उधर अब कल्चर तब्दील हो गया। अब उधर तेरी माँ अच्छा, और तेरी बहन हर जो शहर है ना हाँ जी, उसका एक अपना कल्चर है। वह तेरी अब माँ कराची है को, ना, अच्छा कल्चर देता कौन है? वह तेरी बहन को, अब उधर ये हो गया। कल्चर देती है आपकी लीडरशिप। हाँ, कराची में अब कल्चर हो गया है। ये बात भाईजान। अब तो खैर वो ठहराव आ गया है, वापसी का सफर शुरू हो गया। खुदा करे अभी नहीं, वापसी अभी का भी स्ट्रीट सफर क्राइम नहीं जो है शुरू वो हुआ। देखें, स्ट्रीट क्राइम पाकिस्तान के तमाम शहर निकाल लें, सबसे आपके ज्यादा आपको कराची में पाकिस्तान मिलेगा। में, आपके माशरे में बुराई आती बड़ी तेजी से है, जाती फिर जाते जाते जाती है। इस तरीके से हैदराबाद में है। अब दाखिल हो जाए आप पंजाब में, पंजाब में बढ़के ज़रूर हैं, गालियाँ ज़रूर हैं, दोस्तों गिरबान भी हो नहीं जाएंगे। यार, अब नहीं, बड़ा तब्दील हो गया। मैंने जो जाएंगे। पिछले 10 साल में देखा है, बड़ा तब्दील हो गया ना, इनकलाबी तब्दीली आई है ना। हाँ, इसके बावजूद बुग़्ज़ नहीं है, हाँ। मुनाफ़क़त नहीं है। 15 मिनट के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के बाद वही बंदा उस वही गट्ठे बैठे खा रहे होंगे। हाँ, ये पंजाब के लिए आप कह सकते हैं, केपी के लिए नहीं कह सकते। वहाँ मैं तो पंजाब की नहीं कहा है, आपने शायद गौर से सुना नहीं। मैं कराची से चला हूँ, अभी केपी जाना है। अभी अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत जो है, आप पहले वो भी फरमाया उन्होंने कि हम पश्तून हैं, हमारी दुश्मनी जो है वो नस्लों तक चलती है। अभी तक वो पढ़ा लिखा आदमी है, एक कानूनदान है, और उसकी ये ज़बान, ये लहजा है, तो आप सोचें कि यार ये उसका ज़बान या लहजा नहीं है। पख्तून जो लोग हैं ना, उनको उन्होंने बेवकूफ़ बनाना है। वो इन बड़कों पे ही बेवकूफ़ बनते हैं। ऐसी वो जब वो कहते हैं ना, ओए पंजाबियों, ओए उर्दू बोलने वालों, ओए बलोचियों, ओए मैं ताड़ी अपनी पश्तों में, वो हीरो बन जाते हैं। गंडापुर क्या हीरो है? गंडापुर क्या सियासत है उसकी? यही है ना कि वो अच्छा रात भर छुपा रहा वहाँ पे केपी हाउस में, और लुक छुप के पेशावर पहुंचा और वहाँ पे जाके भड़के लगानी शुरू कर दी, और वहाँ पे तालियां बाज रही थी। और उसका आप उन 24 घंटों का जो है असर आप देख रहे हैं। ग्रैंड जरगा उन्होंने बुला लिया, बाकी सब लोग भी, तमाम सियासी पार्टियां। देखिए, जो हम अब तक इस प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है, ये की है हमने पिछले उनके कैरेक्टर की, लेकिन अब ग्रैंड जरगा पे आ जाते हैं। ये एक अच्छी कोशिश है। देखिए, केपी के सूबे को अमन की ज़रूरत है। वो कल भी एक पश्तो बच्चा हमारे साथ वहाँ बैठा हुआ था, और वो कह रहा था कि पिछले 40 साल में पश्तूनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस सूबे में अमन की ज़रूरत तो है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जी जी, जो आप लफ्ज़ कुर्बानियाँ इस्तेमाल किया है, जी जी, उनको कुर्बान किया किसने है? खुद ही मार रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ जी, बिल्कुल। जब आपके घर में इत्तेफाक नहीं होगा, जब बड़ा भाई छोटे की नहीं सुनेगा, छोटा बेटा बाप की नहीं सुनेगा, हर बंदा अपनी मर्जी करेगा, एक कल्चर पनप रहा है। और बेटा बाप को मारने में दरेग नहीं करता, बाप जो है वो भाई को मारने में दरेग नहीं करता। तो ये तो नस्ली आपकी जो है वो आपस की आप ही जाती कल बात दुश्मनी बता रहे थे, एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, एक लीडर हैं आपके केपी के पख्तून लीडर हैं, वो कहते हैं यार आप तो हम असला बनाते हैं। असफंद यार वली हमारे हैदराबाद में, आपने चलो नाम ले लिया, हम असला बनाते हैं। हाँ जी, हमें दिखा रहे हो आप असला। ये तो मेरे साहब ये अच्छी बात है, ग्रैंड जिरगा होना, क्योंकि सूबे की ज़रूरत है अमन। बहुत हो गई दहशतगर्दी, सुसाइड बॉम्बर्स, ज़ाती दुश्मनी। अच्छा, जो खिताब किया है ना अली अमीन गंडापुर ने इस जरगे से, जी जी जी, यार वो मुझे तो बिल्कुल मुख्तलिफ गंडापुर लगा, बल्कि मुझे वहाँ गुंडापुर लगा ही नहीं। हाँ, मुझे सही अली अमीन गंडापुर जो होता है ना, जो हाँ जी, हाँ जी, वो लगा। मुझे तो बल्कि अली अमीन तावीज़पुर लगा। नहीं, तावीज़ गंडा जो होता है ना, वो नहीं, मुझे नहीं, गंडापुर वो नहीं नहीं लगा, मुझे लगा। तावीज़पुर लगा। बिल्कुल मुख्तलिफ। ऐसा तावीज़पुरों के जो है वो पिला दिया गया है कि अब बहुत मीठी मीठी शाइस्ता गुफ्तगू। नहीं, अगर आप उसकी पॉजिटिविटी रही, फिर पॉजिटिविटी ही रही। पॉजिटिविटी आप ये आपने अपने शुबात का इजहार कर रहे हैं। नहीं कर रहा। अगर उसने अच्छा इकदाम किया है हाँ जी, अली अमीन गंडापुर ने, जी जी, और मुखालफिन को अपने साथ बिठाया है और ख़ुद फ़ोन किया है। हाँ, फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में थे, हाँ जी, उनको फ़ोन किया है कि जनाब आपने जरगे में आना है, हाँ जी, और ख़ुद दावत दी है। इसमें बड़ापन फैसल करीम उसका कुंडी का है कि उन्होंने कबूल कर, नहीं, बड़ापन उसका जिसने पहल की है, जिसने सलाम किया उसने नहीं, उसको कबूल कर लेने वाले की बड़ी है। उसने बड़ा किया, वरना वो इस तरह की आपस में उनकी चपलिश चल रही थी ना, उसको और फिर वो बैठे हुए थे वहाँ गवर्नर। पहल किसने की? अली अमीन गंडापुर ने की ना। सर इसलिए की कि उसको सामने नजर आ रहा था कि जी गवर्नर राज ना लगा दिया जाए। यार आप फिर नेगेटिव चले जाते हो। हाँ। आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही रहो ना। अच्छा जी, अब बात ये है कि अगर अच्छा इकदाम किया ना अली अमीन गंडापुर ने, आप उनको क्रेडिट दें, फिर उनकी जो खिताब है ना उसको ज़रा सुने। जी सुनाइए। ये पर खिताब सुन लें आप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे निहायत खुशी है कि हमारे सूबे के अंदर एक हमारा पश्तून रिवायत के मुताबिक एक जिरगा हो रहा था और पूरी पश्तून कौम का एक जिरगा था, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने अपने डायरेक्ट इक़दाम करके, जो आइन में उनको एक इख्तियार है, लेकिन हर इख्तियार इसलिए नहीं होता कि इंसान उसको इस्तेमाल करे, वो इस्तेमाल करते हुए पुरअमन लोगों पर उस जिरगे की शुरुआत से पहले जो है शेलिंग की गई और उसके बाद निहायत ही अफसोसनाक बात यह है कि फायरिंग की गई, जिसमें 4 नौजवान शहीद हुए, 10 जख्मी हुए और 2 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे भी जख्मी हुए। और हमारे सूबे में जहाँ हमेशा से एक बात होती है अमन की, कि अमन ही हमारा एक बहुत बड़ा मुतालबा है, क्योंकि हमारे लोगों ने स्पेशली जो मर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इन एरियाज में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ ये बताना कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपना घर छोड़ना, अपना घर छोड़ के अपने बच्चों के साथ कहीं और जाना, इसलिए कि पाकिस्तान ने कहा कि जी यहाँ पे ऑपरेशन होगा और उससे अमन कायम होगा। अपने घर बाहर छोड़े, लाखों की तादाद में इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाला पाकिस्तान में उन ऑपरेशनों से अमन तो कायम नहीं हुआ, लेकिन इनकी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। अब वो जो नुकसान हुआ वो तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा याद रखें, मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ, कुर्बानी हमेशा इंशाअल्लाह रंग लाती है और कुर्बानियों से ही ये मुल्क पाकिस्तान बना और कुर्बानियों से ही कौमें बनती हैं। इंशाअल्लाह कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आज इंशाअल्लाह ये जिरगा हो रहा है, ये फैसला हो गया है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियार मांगा कि मेरा सूबा है, मेरे सूबे में मुदाखलत ना करो, और मुझे इख्तियार दो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की कि मैं इंशाअल्लाह ये जिरगा भी कराऊंगा और ये जिरगा हमेशा की तरह हमारे लोग पुरअमन रहेंगे और अपने जायज़ मुतालबात जो उनका हक है मांगना, वो अपने इस जिरगे के ज़रिए, एक करारदाद के ज़रिए पेश करेंगे। और उनको भी इंशाअल्लाह मैं बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत की तरफ से तमाम उन जगहों पे लेके जाऊंगा जिन जगहों पे वो मुतालबात इंशाअल्लाह हल होने हैं और इंशाअल्लाह उनको हल करेंगे। जब आप जिरगे की बात कर रहे थे ना, तो फौरी तौर पे ना आमद हुई है एक शेर की। अच्छा अच्छा, वाह वाह। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ कर दूं, क्योंकि अच्छा मैंने टोका है आपको, तो इसलिए कि मैं ये शेर अगर याद सुनाया ना वो लफ्ज़ मेरे आगे पीछे हो जाने, उसके बाद मुझे याद भी नहीं रहना। सुट्टो 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 फेंको। सियासी चपकलश से न किसी तफरके से। वाह 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 वाह। सियासी चपकलिश से न किसी तफरके से। वाह वाह वाह। या अमन फूटेगा गंडापुर के किसी जरगे से। वाह वाह वाह।